my dear learners, welcome to the Radhika's Code Up channel. Today we will discuss about as a data structure in Python. Clear? So the basic Python data structure in Python includes like a list, set, tuple, and dictionaries, right? And each of the data structure is unique and in its own way, right? And data structure are containers that organize and group of data according to types, right? And the data structure differ based on mutability and order, right? क्योंकि data structure कैसे define होता है, ठीक है? Just take example given ideas, right? ठीक है? So now I want to tell you data structure introduction, right? So in order to support effective manipulation, right, हमें manipulate करना data को store करना है and retrieval of data, so data structure are essential construction in computer science that organize and store data in a certain fashion, right? They act as a building blocks for certain create करना and put करना into a practice algorithms and enabling efficient information management within a computer program, right? Now I want to tell you data structure, right? ओवर ए मैथमेटिकल यानी कि डेटा स्ट्रक्चर जो है ऐसे परफॉर्म करेगा मैथोलॉजिकल टेक्निक्स टू ऑर्गेनाइज डिफरेंट ऑपरेशंस ऑप्टिमाइजिंग करना डेटा आइटम्स के बारे में एंड नंबर, अगर हम बात करें ऐसे नंबर की, लैंग्वेजेस की बात करें, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स की, राइट? तो क्या है, एज ए डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? अगर मैं आपको सिंपल अंडरस्टैंडिंग में कहूँ तो डेटा स्ट्रक्चर आर वे टू ऑर्गेनाइज डेटा that it can be accessed more efficient depending upon the situation, right? And data structure are fundamental of any programming language around which a program is built, right? And Python help to learn the fundamental of this data structure in a simple way or compare to other programming language. And फॉर एग्जाम्पल हम बात करें इसमें लिस्ट की, ठीक है, कि हम लिस्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और भी बहुत सारी होती हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ लिस्ट और जो भी है हम इसमें डिस्कस करेंगे, राइट? टपल्स के बारे में है, ठीक है? तो वो इसके जो ऑपरेशंस थे वो क्या है, स्टेप बाय स्टेप जो है इसमें हम डिस्कस करने वाले, राइट? और रिगार्डिंग एक्सेस की स्पीड कैसे होनी चाहिए, मेमोरी यूटिलाइजेशन के बारे में एंड इजी ऑफ चेंजेस के बारे में, ठीक है? एंड वेरियस डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड वैरायटी ऑफ ट्रेड्स ऑफ, राइट? एंड हैश टेबल क्या होता है, ट्रीज क्या है, ग्राफ है, क्यूब, स्टैक, लिस्ट, राइट, एरे, ये सब किस में आते हैं, डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं, राइट? और आर ए फ्यू एग्जांपल्स ऑफ टाइपिकली डेटा स्ट्रक्चर जो कि इसमें एक्सेस करने वाले हैं, क्लियर? Now, which we will learn in this chapter, advanced data structure, right? And the particular issue at hand and the kinds of operations that must be often carry out determine the data structure to be used. For example, hash table, Excel in speedy data retrieve based on keys, right? Whereas arrays are great for quick indexing and sequential access, right? Index कैसे हो रहा है and sequential access कैसे perform करें. Trees are utilizing to remain hierarchical relationship, whereas link list are best for frequent insertion or removal. Stack insert कैसे करना है and remove कैसे करना है. And list की हम बात करें तो list is a functional and basic data structure, right? List की हम बात करें as a functionally and basic data structure that lets you organize and store collection of objects, right? Collection of objects list are ordered series that can include components of many by the languages, right? हम list के according कैसे हम languages setup करते हैं. List are essential to many programming languages task, right? List का हम use करते हैं जैसे programming task के लिए, right? For example आपको अभी बताने वाली मैं आपको the process of making a list is simple and you use a square brackets, right? आपको ध्यान देना है, अगर आपको लिस्ट बनानी है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी है, राइट? एंड टू सराउंडेड ए लिस्ट ऑफ वैल्यू दैट आर सेपरेटेड बाय कॉमास, राइट? सेपरेट करना है कॉमा से, जैसे माई लिस्ट है, यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा है माई लिस्ट, यहाँ पे आपको सेपरेट करना है कॉमा से, दिस हेलो टू, सिंस लिस्ट आर जीरो इंडेक्सिंग, राइट? लिस्ट भी स्टार्ट होती है जीरो से, जीरो इंडेक्स के बाद फिर 1 इंडेक्स, फिर 2 इंडेक्स, फिर 3 इंडेक्स, राइट? ऐसे सोन चलता रहता है. So you can access elements by utilize the location of the index keys. For the first element, indexing begin at 0 and for the second at 1, right? क्या पहले स्टार्टिंग से वहां 0 से
0 के बाद स्टार्टअप किससे हुआ, 1 से, एंड सो ऑन, राइट. द लिस्ट एंड इज वेयर नेगेटिव indices start counting, right. For example, प्रिंट माई लिस्ट, हमने स्टार्ट किया 0 से, राइट, तो आउटपुट आया 1. -1 स्टार्ट किया तो आउटपुट आया हमारा एज ए 2, राइट, क्योंकि इंडेक्सिंग स्टार्टअप हो रही है ना, 0 1 2 3, जो हम देंगे लिस्ट की वैल्यू वो ही उसी में जो आउटपुट आने वाला है, राइट. लिस्ट सपोर्ट वेरियस ऑपरेशंस, राइट. अपेंड, एड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट, एड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट, जिसे हम अपेंड बोलते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल, माई लिस्ट बनाई मैंने यहाँ पे लिखा अपेंड, ठीक है. माई लिस्ट अपेंड न्यू एलिमेंट, ये भी कह रहा है कि एड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट, एंड ऑफ द लिस्ट में हमारा एक एलिमेंट ऐड होने वाला है, राइट. तो हम उसको कहेंगे माई लिस्ट डॉट अपेंड फिर न्यू एलिमेंट, राइट, कि जो मेरी एलिमेंट है के अंदर जो एंड ऑफ द लिस्ट जो है एक ऐड एलिमेंट होने वाला है, राइट. अब हो गए इंसर्ट के लिए, इंसर्ट एन एलिमेंट एज ए स्पेसिफिक इंडेक्स, राइट. माई लिस्ट डॉट इंसर्ट, राइट. अगर हम रिमूव करना चाहते होंगे तो सिंपल लिखेंगे रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ स्पेसिफिक टास्क, क्या आएगा, माई लिस्ट रिमूव, राइट. हमने रिमूव करना है 2 को तो हम 2 रिप्रेजेंट कर देंगे, 1 को चाहिए तो 1, 0 चाहिए तो मीन 0, जो भी हमें इंडेक्सिंग वैल्यू चाहिए होती है उसको हम ऐसे रिमूव कर सकते हैं, क्लियर. पॉप की हम बात करें जैसे रिमूव एंड रिटर्न, रिमूव करना कैसे में रिमूव करना एंड रिटर्न द एलिमेंट एट ए गिवन इंडेक्स. इफ नो इंडेक्स इज प्रोवाइडेड, अगर आपको कोई भी इंडेक्स प्रोवाइड नहीं है, राइट, इफ नो इंडेक्स इज प्रोवाइडेड द लास्ट एलिमेंट इज रिमूव, तुम्हारा जो लास्ट का एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा. पॉप एलिमेंट, जैसे कि एग्जांपल आपको दिखा रखा है, पॉप एलिमेंट इक्वल टू माई लिस्ट पॉप, राइट. अगर हम बात करें लेंथ की, राइट, तो गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट, यहाँ पे आपको लिख रहा है लेंथ, लेंथ माई लिस्ट, जब आपकी जो लिस्ट बनाओगे इसके अंदर पाइथन कोडिंग में, तो आपकी लिस्ट के अकॉर्डिंग अभी कितनी लेंथ मेंशन हो रही है, तो ऐसे आउटपुट आपके पास वो आने वाली है, राइट. अगर हम बात करें कंकैटिनेशन की, तो कंकैटिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना 2 और मोर लिस्ट को, राइट. फॉर एग्जाम्पल हमने एक लिस्ट बनाई जैसे कि 1 और 2, 2 डिजिट नंबर है 1 और 2, राइट. और मैं एक और मेंशन करूंगी जिसमें होगा 5 और 6, राइट. अब मुझे कॉन्कैटिनेशन करना है तो मैं इसे हमने उसको ऐड करना, राइट. जैसे कि अगर 1 2 4 5 है तो 1 2 4 5 ऐसे सीक्वेंस में जाएगा, राइट. अब मैंने अभी एग्जांपल लिया है जैसे कि आपको क्लैरिटी हो जाए, तो यहाँ पे न्यू लिस्ट है, यहाँ पे माई लिस्ट में मैं ऐड किया 4 5 6, तो ये ऐड हो गया, राइट. तो 4 5 और 6 ऐसा आएगा. स्लाइसिंग की बात करें तो एक्सट्रैक्ट ए पोर्शन ऑफ द लिस्ट यूजिंग स्टार्ट एंड एंड इंडेक्स, राइट. हम स्लाइसिंग में क्या करते हैं, स्टार्ट इंडेक्स हमें देना होता है और लास्ट का जो एंड इंडेक्स है वो भी हमें रिप्रेजेंट करना होता है, राइट. तो हमने यहाँ पर मेंशन किया कि सब लिस्ट, यहाँ पे एक सब लिस्ट बनाई जिसमें लिखा इक्वल टू माई लिस्ट हम कहते हैं 1 कॉलन 4, राइट. तो इंक्लूड एलिमेंट्स एट इंडाइसेस 1 2 एंड 3, तो 1 से 4 की कौन सी चल रही है, 1 2 3, राइट. अगर हम बात करें एज टपल्स की, टपल्स क्या होती है, राइट. एन ऑर्डर एंड इम्यूटेबल ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स is represented by a data structure as called a tuple. Lists and tuples are similar, yet there are some significant this distinction, right? And their immutability makes them useful for situation where you want to guarantee that the data remain intact throughout its existence, right? They are frequently used to group relevant data together, and a comma separated list of values in clause in brackets forms a tuple. This is our definition of a tuple, right? अगर मैं आपको सिंपली कहूँ कि टपल क्या होती है, राइट, तो ये तो ऑर्डर एक सेट होता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स का, राइट, जो कि हम टपल कहते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा है माई टपल, यहाँ पे मैंने कौन सी ब्रेसेस यूज किए हैं, आपको ध्यान देना है कि आप कौन सी ब्रेसेस यूज करो, राइट, क्योंकि हर में क्या हम ब्रेसेस अलग अलग रिप्रेजेंटेशन कर, राइट. इन क्लॉज कहाँ से कौन सी ब्रेसेस यूज करनी, राइट. तो आप देख रहे हो सर्कल ब्रेसेस है 1 फिर 2 फिर हेलो, यहाँ पर 3 and 14, लाइक लिस्ट टपल एंड इंडेक्सिंग अलाउ यू टू एक्सेस एलिमेंट्स बाय देयर पोजीशन, राइट. यहाँ पे मैंने कराया प्रिंट, प्रिंट में ये क्या माई टपल, ठीक है, 0 इंडेक्स पे है तो आउटपुट 1, 2 पे करा तो आउटपुट इज हेलो, राइट. अब देखिए 0 पर क्या दिखाई दे रहा है आपको 1, क्योंकि चल रहा है अकॉर्डिंग टू 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, राइट. यहाँ पर 1 क्या हमारा एज 0 0 इंडेक्सिंग वैल्यू, यहाँ पर 1 इंडेक्सिंग वैल्यू, यहाँ 2 और यहाँ 3. अगर हम आउटपुट में चाहते हैं कि टपल 0 की वैल्यू आए, टपल 0 की वैल्यू क्या है 1, और टपल 2 की वैल्यू में जाए तो 0 फिर ये 1, और टपल 2 की वैल्यू क्या आती है एज ए हेलो, यहाँ पे हमारा हेलो आउटपुट आ चुका है, क्लियर. Now we want to discuss about a tuple, however, cannot have their elements change, right?
once they are created, since they are immutable, to maintain the accuracy of the data within tuple. जब हमारे डेटा को एक्यूरेसी में कैसे लानी है, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग जो है इसके अंदर हम काम करने वाले हैं. This immutability is required. Individual members cannot be changed. However, the full tuple can be changed. Right? My tuple हमने अपने representation किया 4, 5 and 6. Right? Tuples are often used in various contexts. ठीक है, अलग अलग context है इसमें. Such as a function return values. Function can return multiple values as a tuple and which can then be unpacked by the caller. Right? यहाँ पे मैंने representation किया है def get कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, कोऑर्डिनेट्स में मैंने रिप्रेजेंट किया रिटर्न 2 और 3. अब यहाँ पर यदि एक्स और वाई की जो रिलेशनशिप बताना चाहती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन क्या है कि गेट यहाँ पे फिर कोऑर्डिनेट्स. राइट, कि कोऑर्डिनेट्स हमें कितने चाहिए. राइट, तो डेटा ग्रुपिंग. अब हम बात करते हैं डेटा ग्रुपिंग की. तो डेटा ग्रुपिंग क्या होता है कि टपल्स कैन बी यूज्ड टू ग्रुप रिलेटेड डेटा. राइट, डेटा के साथ कनेक्शन करना. ठीक है, क्रिएटेड ए कॉम्पैक्ट वे टू रिप्रेजेंट रिकॉर्ड. राइट, पर्सन का हम चाहते हैं. ठीक है, तो पवन यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट 20, यहाँ पे बुक राइटर. राइट, तो उसकी डेटा को ग्रुपिंग कर दी. डेटा तो हमारा पवन है, यानी इन्फॉर्मेशन पवन है, इन्फॉर्मेशन 20 है, और बुक राइटर क्या इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, तो जैसे मैं डेटा आया हमारे पास, तो डेटा को हमने ग्रुपिंग कर दी. तो ये पवन 20 बुक राइटर. राइट, तो ये से हमारी ग्रुपिंग हो चुकी है. क्लियर. अब हमसे बात करें फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स. राइट, tuples can be used to pass multiple arguments to a function as a single arguments def process data. यहाँ पे स्टार यूज किया ऐसे आर्ग्यूमेंट्स के लिए ARGS. राइट, यहाँ मैं चाहती हूँ कि मैं प्रिंट आर्ग्यूमेंट करूँ, तो मैंने लिखा प्रिंट ARGS. राइट, उसके बाद मैंने मेंशन किया कि प्रोसेस अंडरस्कोर उसका डेटा में किसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ 1, 2 and 3. राइट, और मल्टीपल अगर असाइनमेंट्स की बात करें, तो मल्टीपल अगर मैं डेटा देना चाहती हूँ तो मल्टीपल भी हम एक्सेस कर सकते हैं. राइट, टपल्स अलाउ यू टू असाइन मल्टीपल वेरिएबल्स इन ए सिंगल लाइन. राइट, मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे इन ए सिंगल लाइन. राइट, फॉर एग्जांपल A, B and C इज इक्वल टू क्या है 1, 2 और 3 की. क्लियर. अब मैं ऐसे बात करें आगे डिक्शनरीज की. राइट, पाइथन के अंदर डिक्शनरीज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो you say this carefully. Right, a dictionary is a strong and flexible data structure that enable key values, pair storage and retrieval of data. In certain computer languages, dictionaries are also referred to as a hash map or associative arrays. They offer a mechanism to depict the connections between the different data set and are especially effective for क्विक डेटा रिट्रीवल बेस्ड ऑन ए यूनिक कीज. राइट, हम डिक्शनरीज के अकॉर्डिंग कैसे हम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं. राइट, कैसे हम डेटा को इफेक्टिव बना रहे हैं, कैसे उसके अंदर हम यूनिक की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं. ठीक है, एंड करली ब्रेसेस आर यूज्ड टू फॉर्म ए डिक्शनरीज व्हिच आर लिस्ट ए कॉमा सेपरेटेड की वैल्यूज पेयर containing a key for each value like my dictionary. यहाँ पे आप देख सकते हो करली ब्रेसेस हमने यूज करी है. करली ब्रेसेस मैंने रिप्रेजेंट किया एज नेम पवन, एज 20, ऑक्यूपेशन क्या है एज ए बुक राइटर. क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो जाए आपको. क्या मैंने करली ब्रेसेस में रिप्रेजेंटेशन किया नेम पवन, एज 20 एंड ऑक्यूपेशन इज बुक राइटर. Additionally, now I want to tell you additionally keys must be distinct and while they are frequently string or integer. Right, हम डिक्शनरी का यूज करते हैं स्ट्रिंग भी सकते हैं और ऐसे इंटीजर वाले भी सकते हैं. राइट, एंड अदर इम्यूटेबल टाइप्स में आल्सो बी यूटिलाइज एनी डेटा टाइप इंक्लूडिंग लिस्ट, टपल्स, अदर डिक्शनरीज एंड इवन फंक्शंस मे बी यूज्ड एज ए वैल्यू. राइट, अगर हम बात करें यू कैन एक्सेस वैल्यू इन डिक्शनरी यूजिंग देयर एसोसिएटेड कीज. राइट, यहाँ मैंने प्रेजेंट किया प्रिंट माई डिक्शनरी. इसमें मैंने प्रेजेंट किया नेम के बाद एज. नेम क्या है एज ए पवन और एज क्या है उसकी 20. राइट, यहाँ पे यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा. क्लियर. अगर हम बात करें एज डिक्शनरी सपोर्ट वेरियस ऑपरेशंस इंक्लूडिंग एडिंग एंड मॉडिफाइंग एंट्रीज. राइट, यू कैन ऐड न्यू कीज, वैल्यू पेयर और मॉडिफाई एग्जिस्टिंग वंस. राइट, आप उसको ऐड भी कर सकते हो. ठीक है, अपडेट करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, तो इजीली क्या है डिक्शनरीज में कर सकते हैं. राइट, माई डिक्शनरी सिटी. ठीक है, यहाँ पे सिटी लिखा है तो आप जो कंट्री मेंशन कर देना. ठीक है, एज
यहाँ पे लिखा 20। तो मैं जैसे लिखा है कि अभी तो यहाँ पे आप जो है ऐसे कंट्री मेंशन कर देना, राइट। अगर हम बात करें डिक्शनरी मेथड्स की, पाइथन प्रोवाइड मेथड्स लाइक कीज, key representation, values and items to retrieve various aspects of the dictionaries, right? Dictionary comprehensiveness similar to list comprehensiveness. You can create a dictionary using comprehensive and for concise and efficient um, creation, right? And squad ये हम यूज करेंगे इसके लिए डिक्शनरी कंपैरिजन के लिए, ठीक है। तो ये इसका जो है स्क्वाड, फिर यहाँ पर अंडरस्कोर टिक DICT इक्वल, फिर यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट में एक्स, फिर यहाँ पे कॉलन, फिर एक्स, दो सिंबल से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x एंड रेंज एंड 5, राइट। ये हमारी एज स्टेटमेंट रहने वाली है, ठीक है, जो हम यहाँ पर एज ए इसे यूज करेंगे, ठीक है, डिक्शनरीज में। अगर हम बात करें वह सेट की, इस सेट A set is a basic data structure made to hold an unordered group of distinct items when you need to effective execute operations like membership checking, right? And intersection, union, and difference set are very helpful, right? क्योंकि हम सेट में अगर हम बात करें तो यूनियन की, इंटरसेक्शन की, डिफरेंट की, सेट की आर वेरी हेल्पफुल, राइट। They offer a simple method for controlling data gathering and will guarantee that each piece only appears once, right? एक piece appear होगा only once, ठीक है। तो हम क्या as a set representation कर सकते हैं, right? Creating a set is simple. You enclose a comma, तो separated sequence of values with a curly braces, right? हमें जो हमने सीक्वेंस में अपना जो है डेटा डालना है, राइट। हम क्या करें, बेसिस हम डेटा डालेंगे। फॉर एग्जांपल आएगा माई सेट, यहाँ मैंने रिप्रेजेंटेशन किया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड 5, राइट। तो सेट मेक श्योर दैट ओनली यूनिक डेटा आर सेव। जब हम डेटा बनाने वाले हैं तो ऐसे यूनिक रहने वाला है, यूनिक डेटा आर सेव बाय automatically removing duplicates values, right? A duplicate value won't be added to the set if you try to do so, right? अगर आप चाहते हो तो आप सेट करते हो, लेकिन रिमूव डुप्लीकेसी शो करेगा, राइट। तो ये सेट हमारा सिंपल वे में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर हम रिमूव करना चाहते हो तो रिमूविंग एलिमेंट्स, राइट, एलिमेंट कैन बी रिमूव यूजिंग द रिमूव कीवर्ड होगा, राइट, रिमूव मेथड, ठीक है। तो माई सेट हम यहाँ बनाए, उसे रिमूव कर दिया, तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंडेबल, राइट। ना हम बात करते हैं अब हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, राइट। लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव by applying an expression to each element in an existing sequence like list, tuple, range. The list comprehensiveness is a Python offer a concise and effective approach to generate a list, right? They do away with the requirement for explicit loops by condensing, right? The process of making a new list item into a single line of code. एक न्यू लिस्ट आइटम कैसे बनाते हैं और एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में कैसे हमें लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है अपना आउटपुट एक्सप्रेस करना होता है, राइट। तो हम पढ़ेंगे लिस्ट टपल्स के बारे में, राइट। अगर हम बात करें एग्जांपल देखा सीक्वेंस नंबर, राइट। यहाँ मैंने कि x, यहाँ पे आपको डबल स्टार दिया है 2 4 एंड x इन रेंज 5, राइट। इससे मैं कंडीशन इंप्लीमेंट करने वाली हूँ। कंडीशन क्या है, कंडीशन में आल्सो बी एडेड ए लिस्ट कंप्रीहेंशन यूजिंग द ऑप्शनल इफ क्लॉज एंड दिस इनेबल यू टू फिल्टर द आइटम अकॉर्डिंग टू ए सर्कमस्टांसेस, राइट। आप अपना डेटा कैसे जो है सर्कमस्टांसेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। टू मेक ए लिस्ट ऑफ इवन integer from 0 to 9, एग्जाम्पल या इवन नंबर का x for x in range 10 if x equal to equal 0, राइट। यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी, राइट। अब यहाँ पर चाहती हूँ मैं नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, तो बस ऐसे सिंपल लिखे है, ऐसे इंस्ट्रक्शन हम लगा सकते हैं, क्लियर। नेस्टेड डेटा Python uses the term nested data structure to describe the idea of nesting data structure and in order to describe advanced relationship between the databases, right? You may use their this to construct and explain hierarchical arrangements, list of lists, and dictionaries of dictionaries, and
कॉम्बिनेशन ऑफ अदर डेटा स्ट्रक्चर आर टाइपिकली एग्जाम्पल, राइट। इसमें तो एग्जाम्पल्स दिए अलग अलग कि कैसे हम डेटा स्ट्रक्चर को कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। अब यू मे हैव a list of dictionaries, right। अगर वो डिक्शनरीज के where each one has detail on a certain person, right। हमने नाम लिया एग्जाम्पल पवन और ऐसे प्रीत, ठीक है। पवन की एज बता दी मैंने 20 और प्रीत की एज बता दी 21, राइट। तो हमने ऐसे एग्जाम्पल की तरफ से हमने इसको परफॉर्म कर दिया। अब सिमिलर टू नेस्टिंग लिस्ट विद इन डिक्शनरीज और dictionaries with list various data structure may be used to build multi-level structure that mimic a real world situation, right? And using many levels of indexing or key lookup is necessary to access inner items with navigating and working with the nested data structure, right? Example है इसका print people zero indexing पे इसका नेम क्या है, आउटपुट में आने वाला है पवन, राइट। तो हमने कैसे पीपल क्या रिप्रेजेंटेशन कैसे पवन, राइट। अब हम बात करें इटरेशन ओवर डेटा स्ट्रक्चर, राइट। व्हेन iterating thought data structure in python, each element of a collection such as a list, हम लिस्ट की बात करें, टपल्स की बात करें, डिक्शनरीज की बात करें, तो certain event string is access sequential, right। क्योंकि हम डेटा को परफॉर्म करते हैं तो हमें उससे परेशानी नहीं होती कि हमें डेटा को एक्सेस करना है एज ए सिक्वेंशियली, राइट। यू कैन प्रोसेस filter transform the data using this procedure and to conduct operations for each element, right। to conduct the operations for each element. The most common loop used to iterate over a collection are for loop or a while loop, right? The for loop is a frequent used with the data structure since it take care of the iteration process automatically, right? And लिस्ट की हम बात करें तो नंबर्स के बारे में फॉर नम इज नंबर एंड प्रिंट नम, तो 1 to 5 है तो वॉज ए नंबर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, ठीक है। यू मे यूज मेथड्स लाइक आइटम्स टू इटरेट थॉट्स, कीप कीज वैल्यूज ऑन बोथ इन डिक्शनरीज, राइट। पर्सन का हमने नाम दिया, फंक्शन पर्सन के नेम में क्या मेंशन करने वाले हैं, नेम क्या है उसका पवन, राइट। एज क्या है हमारी 20, and for key the value in person dot item, right। प्रिंट क्या करवाना है हमें, की भी और वैल्यू भी, तो हम की भी रिप्रेजेंटेशन कर देंगे और वैल्यू भी, राइट। एडिशनली यू में iterate thought the components of arrange data structure using loops, right, to further increase your control over the process, and python has methods to enumerate that allow you to obtain both the index and the values throughout the iteration, right। अगर बात करें एज सॉर्टिंग और सर्चिंग, राइट, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में भी क्या करने वाले हैं वैसे क्या होता है हमारे पास कि पाइथन को हमें सॉर्टिंग करना सर्चिंग करना, राइट। तो हम डेटा को कैसे एक्सेस करने वाले, राइट। तो फॉर इफेक्टिवली organizing and retrieve data from the collection or like list array and more sophisticated data, right। and sorting करना search करना, right, are very key programming techniques working with the data in a made simpler by python built in functions and techniques for sort करना and search करना, right। sorting की हम बात करें तो when items are sorted, ठीक है, items sorted होंगे they are put in a certain order, generally ascending use the or descending use the, right। so generally ascending or descending order in python, so python provide the sorted method to order list and other iterable objects, right। नंबर मैंने प्रेजेंट किया 52915, राइट। और इसका जो आउटपुट आने वाला है यानी कि वो जो हम एज ए रिप्रेजेंटेशन में आएगा तो डाटा को सॉर्ट करते हैं, राइट। तो सॉर्टेड नंबर ये कैसे आएगा, सॉर्टेड नंबर आउटपुट इज 1255 12559, right। For list you can also use a sort method which sort a list in place, जब करना चाहते हैं sorting in place में तो number dot sort using the key parameter, right।
You may modify the sorting करना, sort करना, and using the reverse options, you can even reverse the order, right? आप ये कर सकते हो ऐसे reverse order भी कर सकते हो, reverse option के थ्रू भी आप reverse जो है डेटा को आप एक्सेस कर सकते हो, राइट? सर्चिंग की बात करें तो ऐसे finding a particular piece inside a collection. Finding a particular piece inside a collection is a task of searching. Python has functions like index to determine the element of position in a list at number 1 2 3 4 5. हमने नंबर रिप्रेजेंटेशन कर दिया. उसके बाद इंडेक्स, इंडेक्स में मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ नंबर्स डॉट इंडेक्स. इंडेक्स की वैल्यू 3, थर्ड नंबर पे कौन सा है मेरे पास 2. You can index again, index 0, 1, 2, right? Outputs 2. However, B continues when using the index as it raises an error if the element is not found. अगर हम index null value blank यानी null value तो null value में क्या and element is not a found क्योंकि हमने blank का कुछ दिया ही नहीं है तो हमारा element कहने वाला element is not a found. The Python in operator is used to determine whether an element is present in a collection for advanced searching, right? For example, if 3 is numbers, right? 3 numbers and print करना है 3 is present in the list. तो easily जो है as a number हम represent कर सकते हैं कि 3 is present in the list. Right? आई होप यहाँ तक आपको वीडियो क्लियर होगी, ठीक है? जो आज हमने क्या पढ़ा है इसमें as a right. So this was our complete प्रेजेंटेशन एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आप ये कंप्लीट कंटेंट चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या है मेरा टेलीग्राम ज्वाइन, आप जो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट? इसकी जो लिंक है मेरी जो है चैनल पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन.